Hello students, welcome to the video solution for the botany part of CPT2. Let's start with our first question. Question number 91. During which of these stages of cell division do sister chromatids separate and move to the poles of the spindle? Sister chromatids are the replicated chromatids of the same chromosome. और कोई भी सिस्टर क्रोमेटिड कब सेपरेट होगा? जब उसका सेंट्रोमियर ब्रेक होगा. ठीक है, तो सेंट्रोमियर कब ब्रेक होता है? पहला ऑप्शन है एनाफेज ऑफ माइटोसिस, या उसमें होता है सेंट्रोमियर ब्रेक. एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस नहीं, एनाफेज ऑफ मियोसिस में, एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस में क्रोमेटिड जो है सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होता, वहाँ पे सेपरेट होता है होमोलोगस क्रोमोसोम और सेंट्रोमियर इंटैक्ट रहता है. तो सेंट्रोमियर do not rupture in the anaphase 1 of meiosis, and non-sister chromatids will be separated, not the sister chromatids. ठीक है, ऑप्शन बी है anaphase of mitosis and anaphase 2 of meiosis. ये बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज इन दोनों फेजेस में सेंट्रोमियर रप्चर होगा and sister chromatids are going to be separated and moving to the opposite pole. तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन मिल ही गया, दैट इज ऑप्शन बी. लेट्स सी द ऑप्शन सी, एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2. ये तो हमने पहले ही कहा कि ये गलत है, एनाफेज 1 में नहीं होगा. एंड द लास्ट वन इज एनाफेज ऑफ माइटोसिस. ये करेक्ट था, लेकिन लास्ट में क्या लिखा है? माइटोसिस ओनली. ओके, नॉट ओनली इन द एनाफेज ऑफ माइटोसिस, इट इज ऑल्सो इन द एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस. सो क्वेश्चन नंबर 91 विल गो विथ ऑप्शन बी. Question number 92. In male fruit flies, white eyes are determined by A. Okay, तो in male fruit fly, white eye जो है ये हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था म्यूटेंट में, मतलब ये है रिसेसिव टाइप. जबकि जो डोमिनेंट टाइप है, वाइल्ड टाइप है, वो आई कलर क्या होगा? वो आई कलर होगा रेड आई. ठीक है, तो यहाँ पे व्हाइट आईज आर डिटरमाइंड बाय ए रिसेसिव जीन, और ये कौन से क्रोमोसोम में था? क्रोमोसोम नंबर एक्स. ओके, एक्स क्रोमोसोम में ये रिसेसिव जीन है व्हाइट आई. तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्रांस एनाटॉमी इन C4 प्लांट्स? C4 प्लांट में क्रांस एनाटॉमी है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फोटो रेस्पिरेशन. ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन है मैक्सिमाइज लाइट एब्जॉर्प्शन, नो. रिड्यूस ट्रांसपिरेशन अंडर वाटर स्ट्रेस, increase carbon dioxide concentration around Rubisco. This is our correct answer. Providing site for photo respiration, नहीं, photo respiration ना हो इसीलिए क्रांस एनाटॉमी जो है बनाया गया है. तो यहाँ पे लिखा है कि increase carbon dioxide concentration around Rubisco. तो क्रांस एनाटॉमी में जो आउटर सेल है वो है मेसोफिल सेल, जहाँ पे रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पिप to form oxaloacetic acid and then to malic acid. अभी ये malic acid ट्रांसपोर्ट होगा from mesophyll cell to the bundle sheet cell, और bundle sheet में ये decarboxylation होगा to form the pyruvic acid, and pyruvic acid will again go back. Now you can see in the bundle sheet cells कार्बन डाइऑक्साइड जो ये रिलीज किया गया, it will be given to the Rubisco. Okay, so what is the purpose of the Kranz anatomy? To give carbon dioxide, to provide carbon dioxide to Rubisco at a higher concentration. अगर carbon dioxide higher concentration मिले, then there is no chance of photorespiration. So 93 correct option is C. 1,3-bisphosphoglyceric acid is the, okay, PGAL, that is phosphoglyceraldehyde, that is you can also call it glyceraldehyde 3-phosphate, undergo oxidation dehydrogenation to form 1,3-bisphosphoglyceric acid. ये ग्लाइकोलाइसिस में एक रिएक्शन है जहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लॉस होगा. 2 hydrogen is, that is 2H plus and 2 electron, and this will bind with the NAD plus. So in this reaction PGAL is oxidized, okay, and NAD plus is reduced, and the resultant is the formation of NADH H plus. हमें पूछा गया है 1,3-bisphosphoglyceric acid is the dash form of PGAL, तो क्या होगा? is the oxidized form of PGAL. We'll go with option B.
The irreversible permanent increase in size of an organ or its part or even an individual cell is called. It is called growth. This is the definition of growth. The first option was differentiation. No, differentiation is when a meristematic cell like primary meristem changes to primary permanent cell. That is called differentiation. De-differentiation is when primary permanent changes into secondary meristem. And what is development? Development is sum total of growth and differentiation. Okay, so for 95 we'll go with option D. What is the role of DNA polymerase in DNA replication? What is the role? First option is forms the replication fork. No. Helicase enzyme open the DNA double helix. Okay, it is also called unwinders, and the part of the DNA helix which is open for replication is called replication fork, and it is not formed by DNA polymerase. Joins discontinuously synthesized fragments on the template with polarity 5' to 3'. These are the Okazaki fragments, and at the end of DNA replication ligase enzyme join the Okazaki fragments. So ये भी DNA polymerase नहीं करता. C option है add nucleotides to the growing DNA strand only in one direction. Yes, and what is the direction? That is 5' to 3'. And yes, this is the role of the DNA polymerase. DNA polymerase will read the template in 3' to 5' and will synthesize the new DNA strand to 5' to 3'. Okay, so I'll go with option C. Now let's see option D पे क्या है. The DNA polymerases on their own can initiate the process of replication randomly at any place. No, cannot start at any place because DNA polymerase can start replication only at the ORI site, that is origin of replication. So question number 96, correct option is C. 97, match the column 1 with column 2. column 1 में है diagrams, column 2 में है types of the cells. Let's do. This is columnar epithelial cells, mesophyll cells, red blood cell and white blood cell. Then what is the sequence we got? It is 1 is C, 2 is A, 3 is B, 4 is D. C A B D, C A B D. Option C. Very easy one, right? While planning for an artificial hybridization program involving dioecious plants, that is unisexual, which of the following steps would not be prevalent? Which of the following step will not be relevant? तो यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या स्टेप है? सबसे पहले तो है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स विद डिजायरेबल कैरेक्टर. फिर हम लोग करते हैं इमास्कुलेशन के बाद है बैगिंग के बाद है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन. उसके बाद है रीबैगिंग एंड द लास्ट वन इज टैगिंग. तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेप नॉट रेलिवेंट है अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल हो, है ना. तो अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट है देन द फ्लावर्स आर आइदर मेल और फीमेल. इमास्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर. ओके, सो अगर प्लांट में पहले से ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर है देन वी नो नीड टू डू इमास्कुलेशन. सो कौन सा स्टेप हमारे लिए नॉट रेलिवेंट है? आई विल गो विथ ऑप्शन डी. Dwarfness can be controlled by treating the plant with gibberellic acid. That is our first correct answer. Gibberellic acid, that is called gibberellin, causes increase in the length of the internode. Okay, and it can overcome the genetic dwarfism. तो अगर कोई प्लांट जेनेटिकली भी ड्वार्फ है उसको अगर हम लोग जिबरेलिन से ट्रीटमेंट करेंगे then the plant phenotypically it will become tall. Okay, so I will go with option A for question number 99.
During photosynthesis, excited electrons of photosystem 2 are picked up by an electron acceptor which passes them to an electron transport system. The movement of electrons in ETS. Okay, तो यहाँ पे ETS in the chloroplast जो है इसके ऊपर क्वेश्चन है. फोटोसिस्टम 2 जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ओके, सो दिस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज PQRS, दैट इज प्लास्टोक्विनोन रिड्यूसिंग सब्सटेंस. तो हमें बोला गया है कि जब ये एक्सेप्टर जब आगे इलेक्ट्रॉन को पास कर रहा है तो वो मूवमेंट कैसा है, क्या वो अपहिल है, क्या वो अपहिल है, क्या वो डाउनहिल है, क्या आइदर अपहिल और डाउनहिल या नाइदर अपहिल नॉर डाउनहिल. So you can see after that, after the acceptor picked the electron, okay, from the PS2, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट डाउन हिल है, राइट. तो प्लास्टोक्विनोन रिड्यूसिंग सब्सटेंस विल पास द इलेक्ट्रॉन टू प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम B6F, okay, then come plastocyanine, देन कम PS1, राइट. तो आगे FRS, FD. तो हम लोग कौन से ऑप्शन में जाएंगे कि द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी डाउन हिल इन टर्म्स ऑफ द रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल. Mitochondria and chloroplast are double membrane bound structures. Correct है. They possess single circular DNA molecule and 80S ribosome. No, this part is wrong. Mitochondria और chloroplast में 70S ribosomes होते हैं. Mitochondria and chloroplast, they are called semi-autonomous organelle and they have so much of similarities. Semi-autonomous organelle. Okay. तो हम लोग कौन से ऑप्शन में जाएंगे? 1 is true and 2 is false. Option A. Among the sets of terms given below, identify those that are associated with the gynoecium. Gynoecium से associated सारे terms होने चाहिए. Ovule है, ovary है, embryonic sac है, tapetum no. Tapetum is the innermost wall of anther, तो option A नहीं होगा. Thalamus no, pistil style ovule. Thalamus is the solen part of the pedicel. It is also called receptacle. It can hold all the floral holes. Stigma, ovule, embryo sac, placenta, yes, all these are part of gynoecium. Ovule, stamen, no. Stamen is the part of the androecium. It is the male reproductive part. Ovary, embryo sac was correct. तो हम 102 में जाएंगे ऑप्शन सी के साथ. At which stage of mitosis do chromosomes uncoil and new nuclear envelopes form? New nuclear envelopes form in telophase and nuclear envelope disappears in prophase. Okay, so very easy question. 103 will go with option B. Which molecule binds to the operator region to prevent the transcription in the lac operon? लैक ऑपरॉन में जो रेगुलेटरी जीन है वो है आई जीन. आई जीन है इनहिबिटरी जीन और ये आई जीन बाय ट्रांसक्रिप्शन ये बनाता है रिप्रेसर mRNA एंड बाय ट्रांसलेशन इट फॉर्म रिप्रेसर प्रोटीन. और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड हो जाएगा किसके साथ? ऑपरेटर रीजन के साथ and it will block the pathway of RNA polymerase so that RNA polymerase cannot read the structural genes जिससे कि lac operon will be switched off, right? तो यहाँ पे पूछा गया है which molecules bind to the operator region and transcription को prevent कर देता है. What will be our answer? That is repressor protein. Option D. RNA polymerase होगा ही नहीं क्योंकि RNA polymerase help in the transcription. It is the DNA dependent RNA polymerase जो DNA को read करेगा और RNA synthesize करेगा. Sigma factor is the initiation factor for transcription, so it is not the answer. Inducer molecule lac operon में inducer है lactose और lactose के presence में lac operon जो है functional होता है वहाँ पे transcription होता है तो ये हमारे options नहीं होंगे. तो 104 correct option is D. Read the following statements and identify the correct option.
Contractile vacuole takes part in osmoregulation and excretion. Yes, contractile vacuoles हमें मिलेगा बहुत सारे प्रोटोजोआ में, जैसे कि यूग्लेना में मिलेगा, हमें एमीबा में मिलेगा, पैरामेशियम में मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे ये करेक्ट है. फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स, राइट? एमीबा में, पैरामेशियम में फूड वैक्यूल बनता है. अगर एमीबा किसी भी फूड को कैप्चर कर रहा है, how the vacuole will be formed? So these are the pseudopodia, and these pseudopodia will form the food vacuole. Okay? तो जब फूड को एनगल्फ किया जाता है तब ये फूड वैक्यूल बनता है. Again, these are found in protozoa. The vacuole is bound by double membranes called tonoplast. This is a wrong statement. Vacuole is a single membrane structure. Vacuole can occupy 90% of the volume of the cell. This is also correct. हमें ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शन. हम जाएंगे 1, 2 and 4. 1, 2 and 4 ऑप्शन बी. In mice, black coat color is dominant to brown coat color. The offspring of a cross between black mouse and a brown mouse were allowed to interbreed. The offspring will be heterozygous. Heterozygous. कलर क्या होगा? ब्लैक. अगर इनमें इंटरब्रीड किया जाए, सेल्फिंग किया जाए, देन व्हाट विल बी द रेशियो? अभी इट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट? ये मेंडल लॉ के अकॉर्डिंग ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और हमें पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है 3:1, जहाँ पे जो 3 है वो है ब्लैक और जो 1 है वो है ब्राउन. ओके, सो आउट ऑफ 4 इंडिविजुअल 3 आउट ऑफ 4 क्या है? ब्लैक. हमें पूछा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी वुड हैव ब्लैक कोट्स? इट विल बी 75%. ऑप्शन सी. Match the Coulomb 1 with Coulomb 2. Viruses size are given, that is A होगा 4, 0.02 to 0.2 micrometer. PPLO pleuropneumonia like organism ये होगा about 0.1 micrometer. Eukaryotic cell 10 to 20 micrometer, and bacterium will be 1 to 2 micrometer. ऑप्शन है 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. ऑप्शन डी. Which of the following descriptions of meiosis are incorrect? Metaphase 1 of meiosis is the same as metaphase of mitosis. No. Metaphase 1 of meiosis is reductional, जबकि mitosis क्या है? Equational cell division, so it cannot be same. In prophase 1 and 2 of meiosis, the chromosomes decondense. प्रोफेस में कभी भी क्रोमोसोम डिकंडेंस नहीं होता. प्रोफेस में कंडेंसेशन होता है. किसका कंडेंसेशन होता है? क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है, जिससे कि क्रोमोसोम बनते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग है. Meiosis results in the formation of 4 daughter cell. ये करेक्ट है. अगर एक डिप्लॉयड सेल से हमने शुरू किया तो meiosis 1 will give us 2 haploid cells और meiosis 2 will give us finally 4 haploid cell, है ना? तो at the end of the meiosis we are getting 4 daughter cells. लेकिन हमें ढूंढना है इनकरेक्ट. कौन से इनकरेक्ट है? A and B, both A and B. Our correct answer will be option D. 109. The photochemical phase of photosynthesis include. Photochemical phase. Okay, first let us understand photochemical phase का मतलब है light reaction. Photosynthesis में एक होता है photochemical phase, एक होता है biosynthetic phase. Photochemical phase is light reaction and biosynthetic phase is dark reaction. So light reaction में क्या क्या चीज़ें होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है, yes. फॉर्मेशन ऑफ NADPH, हाँ, NADPH फॉर्म होता है इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. यूज ऑफ ATP, नो. लाइट रिएक्शन प्रोड्यूसेस ATP. यूज ऑफ ATP will occur in the dark reaction during the reduction steps and during the regeneration step.
वाटर स्प्लिटिंग, यस, फोटोलाइसिस होता है और फोटोलाइसिस से ही ऑक्सीजन रिलीज होता है, हमने तो पहले जो है टिक कर दिया ऑक्सीजन रिलीज। कार्बोक्सिलेशन, नो, कार्बोक्सिलेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डार्क रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे कौन से जो है फोटो केमिकल फेस में आते हैं, लाइट रिएक्शन में आते हैं, हम जाएंगे 1, 2 एंड 4, कहाँ पे है 1, 2 एंड 4 ओनली, ऑप्शन बी। Read the following statements. Roots, stems and leaves respire at rate faster than no. It is slower. प्लांट में रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी स्लो है और ये एक रीज़न है हाउ डज द प्लांट सर्वाइव, हाउ डज द प्लांट मैनेज विदाउट हैविंग एनी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे रूट, स्टेम्स एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट्स स्लोअर देन द एनिमल्स डू, सो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। In green plants, there is very little transport of gases from one plant part to another, okay, and it is by simple diffusion. ये स्टेटमेंट करेक्ट है। प्लांट में गैसियस ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं होता। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, और ट्रांसलोकेशन होता है वाया जाइलम एंड फ्लोएम। Xylem translocate water and minerals and phloem translocate the food, the sucrose। तो gaseous transport बहुत ही ज़्यादा short distance में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे statement 2 करेक्ट है, हम जाएंगे only statement 2 is correct। यहाँ पे लिखा था 1, 2 करेक्ट, 1 करेक्ट, 1, 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन सी। Identify the precursor substance used in the biosynthesis of gibberellins in plants। Okay, precursor ढूंढना है gibberellins का। First option indole compounds। Indole compound is the precursor for auxin। Purine derivatives याद करो, adenine किसके लिए है, cytokinin। Carotenoids for abscisic acid। Terpenes gibberellic acid, gibberellin will go with option D। ओके, ये सारे याद करना है हमें। 112 embryo sac is to ovule। Embryo sac is the female gametophyte, ovule is the megasporangium। ओके, तो embryo sac is to ovule as dashed to an anther। एंथर के अंदर क्या होगा, अगर ओव्यूल के अंदर है फीमेल गैमेटोफाइट तो एंथर के अंदर क्या होगा, एंथर के अंदर होगा मेल गैमेटोफाइट। एंड हु इज द मेल गैमेटोफाइट, दीज आर पोलन ग्रेन्स। तो ऑब्वियसली हमें ऑप्शन में पोलन ग्रेन देखना है। स्टेमन, माइक्रोस्पोर, मदर सेल, नो, विल गो विथ पोलन ग्रेन। ओके, समझ आ रहा है। A man having the genotype AABBCCDD। Okay, let's write it AABBCCDD। कितने हाइब्रिड है इसमें, 2 ही हाइब्रिड है, n equal to 2। n माने number of hybrid। Okay, so a man having the genotype this can produce x number of gamete, can produce x number of genetically different sperms। Number of sperms produced by this man taken as x, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 to the power n। तो यहाँ पे n equal to है 2, 4 different types of male gametes, that is sperms, will be produced by this man। Omen of genotype AABBCCDD, ठीक है। क्या लिखा है, कैन जनरेट y नंबर ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट एक्स। आइडेंटिफाई करो नंबर ऑफ हाइब्रिड, 1, 2, 3, n equal to 3। so number of genetically different eggs 2 to the power n, so how much it will be, it will be 8 different types of eggs। तो हम जाएंगे 4 and 8 के साथ। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x and y, इट इज 4 and 8, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ गैमेट क्या होता है, 2 to the power n, और n होता है द नंबर ऑफ हाइब्रिड। ये वाला पार्ट हाइब्रिड नहीं है, ये क्या है, प्योर ब्रीड है। देखो ये क्या है, होमोजाइगस पार्ट है, राइट, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ वाटसन एंड क्रिक्स proposition was base pairing between the 2 strands of the polynucleotide chain। yes, double helix model, दोनों स्ट्रैंड जुड़े हुए हैं by hydrogen bond and it is by complementary base pairing। which scientist work led to the discovery of the base pairing rule in DNA? this is Erwin Chargaff, जिसको हम कहते हैं चार्गफ्स रूल।
Chargaff rule. Chargaff's rule is applicable for double stranded DNA, जहाँ पे हम बोलेंगे amount of purine is equal to amount of pyrimidine, that is A plus G equal to C plus T, A plus G by C plus T equal to 1, right? And A equal to T, G equal to C, so A by T equal to G by C equal to 1. तो ये सारे हैं चारगफ्स रूल के कंसेप्ट हमारे. तो यहाँ पे चारगफ रूल जो है या अरविंद चारगफ जो है उन्होंने दिया था द कंसेप्ट ऑफ बेस पेयरिंग, ओके, और वो वाटसन और क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल में एक हॉलमार्क बना. ठीक है. ऑप्शन ए था रोजालिन फ्रैंकलिन, ये हमने कहाँ पढ़ा था, मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन, दे गेव द एक्स-रे डिफ्रैक्शन मॉडल फॉर डीएनए. हर्शे एंड चेस, they did the final experiment that proved DNA as the genetic material. Avery, MacLeod and McCarthy, they were involved in the biochemical characterization of Griffith's transforming principle. तो ये सारे हमारे ऑप्शन नहीं हैं. 114 हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ. Which of the following is not an example of a Mendelian disorder? Okay. Disorders, genetic disorders are two types, chromosomal disorders and Mendelian disorder. Chromosomal disorders are caused by chromosomal mutations and Mendelian disorders are caused by gene or point mutation. तो हमें यहाँ पे ढूंढना है कौन सा Mendelian disorder नहीं है. सबसे पहले trisomic mutation of sex chromosomes in Klinefelter's male. Klinefelter syndrome is not a Mendelian disorder, it is a chromosomal disorder. क्योंकि ये chromosomal mutation के वजह से होता है. कौन सा mutation है? Aneuploidy. और aneuploidy के अंदर ये है trisomy that is having 3 copies of one chromosome. Okay? तो यहाँ पे Klinefelter male में जो sex chromosome है, sex chromosome के 3 copies होते हैं. मेल में सेक्स क्रोमोसोम होता है XY, लेकिन क्लीनफिल्टर मेल में एक X एक्स्ट्रा होता है, दैट इज XXY, दैट गिव टोटल क्रोमोसोम नंबर ऑफ 47. तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है. हमारा ऑप्शन ए जो है यही हमें चाहिए. फिर क्या दिया है, पॉइंट म्यूटेशन ऑफ HbA1 जीन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 16. ये क्या है, HbA1 हीमोग्लोबिन अल्फा 1 जीन क्रोमोसोम 16 दैट कॉजेस alpha thalassemia. Mutation of beta globin gene on chromosome number 11. ये हो सकता है sickle cell anemia और beta thalassemia. And defect in either red or green cone of eye, ये है red green color blindness. Red green color blindness, it is X-linked recessive जेनेटिक डिसऑर्डर. ओके, अगर हम लोग सिकल सेल के बारे में पूछे, सिकल सेल है ऑटोजोमल रिसेसिव, और अगर अल्फा थैलासेमिया बीटा थैलासेमिया बोल रहे हैं वो क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव. तो ये सारे आएंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर में. ठीक है. तो यहाँ पे 115 में हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ. 116. Identify A, B and C in the longitudinal section of flower showing growth of pollen tube. Okay, let us identify this part. A, this is pollen tube. Pollen tube क्या दिखाई दे रहा है, pollen tube from the stigma it is passing through the tissue of style and entering into the ovule and finally to the embryo sac. B अगर हम देखें, B है पोलर न्यूक्ली. C है सिनर्जिट्स. ये वाला पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं, दिस पार्ट है ना, ये क्या है, एग एपारेटस. तो ये दोनों सिनर्जिट है और उसके साथ क्या है, एग. ये हम देख रहे हैं ना, ये क्या है, एग. और ये वाला पार्ट क्या है, सेंट्रल सेल, राइट. और ये क्या होगा, ये होगा एंटीपोडल्स. तो हमारा सीक्वेंस होगा पोलन ट्यूब, पोलर न्यूक्ली एंड सिनर्जिट्स. और कैसे समझ आएगा कि कौन सा सिनर्जिड है और कौन सा एंटीपोडल है, माने कौन सा एग एपारेटस है, कौन सा एंटीपोडल्स है, कौन सा माइक्रोपाइल है, कौन सा चला है. पोलन ट्यूब ऑलवेज एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल ऑफ द एम्ब्रायो सैक बाय पेनिट्रेटिंग द सिनर्जिड. अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर हो रहा है, देखो कहाँ एंटर हो रहा है, इस साइड से एंटर हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, सिनर्जिड, राइट. एंड दिस विल बी द एग,
राइट, इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है। तो 116 में हम कौन से ऑप्शन में जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। Which one of the following cellular parts are correctly described? Thylakoids, flattened membranous sacs forming the grana of chloroplast. क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक है, जो साथ में मिलके क्या बनते हैं? ग्रेना. दिस इंडिविजुअल मेम्ब्रेनस सैक इज कॉल्ड ए थाइलाकॉइड. दिस इज करेक्ट. Centrioles, sites for active RNA synthesis. No, it is wrong. Centrioles form the spindle fibers during cell division, and centrioles are present in animal cells, not in plant cells. Ribosome, those in chloroplast are larger, while those in the cytoplasm are smaller. Okay, no, ये wrong है. क्लोरोप्लास्ट में जो है वो स्मॉलर है, वो होगा 70S, और जो साइटोप्लाज्म में है, साइटोप्लाज्म में कहाँ पे है? ऑन द सरफेस ऑफ द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और कहाँ पे है? ऑन RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो होगा 80S. लाइसोसोम ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक pH. इज इट रिप्रेजेंटिंग एसिडिक pH? नो, सो इट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट. हमें ढूंढना है करेक्टली डिस्क्राइब्ड. करेक्ट वन इज ऑप्शन ए. Which of the following descriptions of mitosis are incorrect? DNA synthesis occur at mid prophase. No, DNA synthesis occur at S phase, और ये S phase आता है under interphase. M phase में तो नहीं आता, M phase में आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. तो ये रॉन्ग है. न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन इन प्रोफेज एंड रिफॉर्म्स इन टेलोफेज. तो प्रोफेस में न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, एकदम सही है, और वापस बनता है टेलोफेस में. ये करेक्ट हो गया. द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर्स ऑकर्स इन G2 फेस. G2 फेस में सेंट्रोमियर डिवाइड होता है. सेंट्रोमियर G2 फेस में डिवाइड नहीं होता. कहाँ डिवाइड होता है? एनाफेस, और एनाफेस इज द थर्ड फेस अंडर एम फेस. ओके, और अगर सेंट्रोमियर, जब सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, then the sister chromatids, okay, that is the replicated chromatids, that are the chromatids present in the same chromosome, are going to be separated and they will migrate to the opposite pole. तो ये जो सेंट्रोमियर है वो कब डिवाइड होता है? ये होता है एनाफेस में. तो ये हमें ढूंढना है इनकरेक्ट. कौन सा इनकरेक्ट है हमारे पास? 1 and 3, ऑप्शन बी. Question number 119. Following crops have been extensively cultivated in CO2 rich atmosphere for higher yield. Okay? तो यहाँ पे कौन से क्रॉप को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर में ग्रो करते हैं? मेनली कहाँ ग्रो कर रहे हैं? इनसाइड ए ग्रीन हाउस टू गेट हायर प्रोडक्शन. तो यहाँ पे सबको आई थिंक ये आंसर पता है डायरेक्टली. ये आंसर है टमेटोज एंड बेल पेपर. ओके, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन, नथिंग टू डू हियर. Which of the following statements about tRNA is correct? tRNA is not involved in translation. It is wrong. tRNA carries nucleotides to ribosomes. No, tRNA carries amino acid to ribosome for translation. tRNA contains an anticodon that pairs with mRNA codon. Yes, and by this tRNA read. tRNA is the reader of mRNA and the reading direction is 5 prime to 3 prime. tRNA binds directly to DNA to assist in replication. नहीं, replication में tRNA है ही नहीं, और ना ही tRNA DNA से bind होता है. तो ये सारे स्टेटमेंट रॉन्ग है. हमें ढूंढना था करेक्ट. ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. 1 to 1. Consider the given statements. Stomata are responsible for gaseous exchange in leaves. Correct. Light dependent reaction is light reaction of photosynthesis occur in the thylakoid membrane. तो ये भी करेक्ट है. लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है. द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल occurs in stroma. No. Water splitting, that is photolysis, release of oxygen, everything occur inside the lumen. Okay, lumen of thylakoid. हमें ढूंढना है करेक्ट इनकरेक्ट. लेट्स सी.
only 2 is correct. No, not only 2 is correct, 1 and 2 correct, right? तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ. 1 and 2 are correct. Okay. Match the coulombs 1 and 2 and choose the correct option. Breakdown of glucose to pyruvic acid, it is called glycolysis. So 1 is B. Sucrose is converted into glucose and fructose by invertase enzyme. So 2 will be C. Fermentation occurs in cytoplasm. So 3 will be A. Our sequence is BCA. BCA. Option A. 123. Multiple alleles control the character of phenylketonuria. No, phenylketonuria is an example of प्लियोट्रॉपी जहाँ पे एक ही जीन बहुत सारे फिनोटाइप को कंट्रोल करते हैं. तो ये मल्टीपल एलिल्स के तो एग्जाम्पल है नहीं. स्टेम हाइट इन पी नहीं, यहाँ पे भी मल्टीपल एलिल्स नहीं है. यहाँ पे 1 जीन इक्वल टू 2 एलिल्स है. कैपिटल टी स्मॉल टी. T for tall, small t for dwarf. Blood group. In human ABO blood group system, we can see presence of multiple alleles because our I gene regulate the blood groups and I gene has 3 alleles. IA, IB and I. Okay? तो यहाँ पे blood group जो है ये multiple alleles की एग्जाम्पल है, राइट? और सिकल सेल इज अगेन सिमिलर टू phenylketonuria, इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी. और प्लियोट्रॉपी, एज आई टोल्ड, 1 जीन कंट्रोल्स मैनी फिनोटाइप. ओके, इट इज नॉट फॉर मल्टीपल एलील्स. Which of the following statements about translation is incorrect? Translation occurs in the cytoplasm. Correct है, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है. Translation requires mRNA, tRNA and राइबोसोम. mRNA जिसके पास है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, tRNA क्योंकि tRNA है द रीडर, द एडाप्टर, और राइबोसोम बिकॉज राइबोसोम इज नीडेड एज ए प्रोटीन फैक्ट्री जहाँ पे प्रोटीन बनेगा. और जो राइबोसोम में जो LSU है, लार्ज सब यूनिट, उसका जो rRNA है, that act as ribozyme and this ribozyme help in binding the amino acids. That means this ribozyme catalyze the peptide bond formation. तो ये सारे चीज़ों के लिए राइबोसोम तो चाहिए हमें. ऑप्शन सी है ट्रांसलेशन ऑकर्स इन द न्यूक्लियस. नो, अगर ये ट्रांसक्रिप्शन बोलते तो करेक्ट होता है ना. ट्रांसक्रिप्शन कैन ऑकर इन द न्यूक्लियस बट नॉट ट्रांसलेशन. तो ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट है. देखो हमें इनकरेक्ट ढूंढना है. डी है ट्रांसलेशन कन्वर्ट्स mRNA इनटू ए पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू ए प्रोटीन. इट इज ऑल्सो करेक्ट. तो ऑब्वियसली 124 ऑप्शन, आवर ऑप्शन विल बी सी. 125. Which of the following is not a feature of the central dogma of molecular biology? Central dogma is given by Francis Crick and it was told that genetic information flow unidirectionally from DNA to RNA to protein. Okay, so DNA to DNA, that is replication. DNA to RNA, it is transcription, and RNA to protein is translation. तो DNA, RNA, प्रोटीन ये सीक्वेंस करेक्ट है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डॉग्मा. हमें नॉट ढूंढना है. रेप्लिकेशन इज पार्ट ऑफ द सेंट्रल डॉग्मा. यस, देखो रेप्लिकेशन इज पार्ट. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो वायरस में होता है जहाँ पे आरएनए से, वायरल आरएनए से कंप्लीमेंट्री डीएनए बनता है बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम, इट इज एन एक्सेप्शन टू द सेंट्रल डॉग्मा. यस, ये भी करेक्ट है. नंबर 4. ओके, अच्छा यहाँ पे BCD होगा, ठीक है ना, मैं करेक्ट कर दे रही हूँ. तो नंबर डी पे क्या लिखा है? प्रोटीन्स कैन डायरेक्टली एनकोड जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ये वाला ऑप्शन जो है रॉन्ग है. ठीक है, प्रोटीन डायरेक्टली एनकोड नहीं कर सकता. प्रोटीन को इंफॉर्मेशन चाहिए mRNA से, और mRNA को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द DNA. तो 125 में हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ. 126. Which of the following floral part forms the pericarp after fertilization? Pericarp is the fruit wall.
ओके तो कौन सा पार्ट है जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फ्रूट वॉल बनेगा? लेट्स सी, ऑप्शन ए है न्यूसेलस, नो. रिमेनिंग ऑफ न्यूसेलस आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट कैन फॉर्म पेरिस्पर्म, नॉट पेरिकार्प. आउटर इंट्यूगमेंट ये बनेगा आउटर सीड कोट, दैट इज टेस्टा. इनर इंट्यूगमेंट बनाएगा इनर सीड कोट, दैट इज कॉल्ड टेगमेन. तो बाकी बचा ओवरी वॉल. ओवरी वॉल इज आवर करेक्ट ऑप्शन. ओवरी वॉल after fertilization will give rise to fruit wall, that is pericarp. तो 126 में हम जाएंगे C के साथ. Okay. 127 in the following human pedigree the field symbols represent the affected individuals for which genetic disorder this pedigree is not applicable. Not applicable देखना है, ठीक है. पहले इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं हम लोग, है ना. अच्छा, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में है थैलासेमिया, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया. यहाँ पे जो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, और बाकी तीनों जो एग्जाम्पल्स है वो है ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स के. तो हमें ऑटोजोमल ही पूछा गया है, तो लेट्स आइडेंटिफाई कि कब एक जेनेटिक डिसऑर्डर ऑटोजोमल होता है. सबसे पहले ये है पेरेंटल जनरेशन, हम देख रहे हैं ये है P1, ये है F1, है ना. F1 में ये है फर्स्ट चाइल्ड, देखो ये फर्स्ट चाइल्ड है, दिस इज द सेकेंड चाइल्ड, दिस इज द थर्ड चाइल्ड. फिर यहाँ से शुरू होता है P2 जनरेशन. देखो ये सारे P2 जनरेशन के पेरेंट्स हैं और है इनके बच्चे, ये है F2 पेरेंट्स. फिर यहाँ पे ये P3 जनरेशन जो है जनरेशन के पेरेंट्स है. तो पहले तो ये हमने समझ लिया, और ये फिर किस में आ जाएगा? F3 में आ जाएगा, ठीक है ना. ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं F1 जनरेशन में मेल एंड फीमेल, राइट, मेल एंड फीमेल आर इक्वली अफेक्टेड. किसी भी पेडिग्री में अगर मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड है देन इट इज ऑटोजोमल. ओके, पहले तो ये ऑटोजोमल है, ये समझ लिया. अगर मेल ज्यादा अफेक्टेड है और फीमेल अफेक्टेड नहीं है तो क्या चांसेस है दैट द डिजीज इज सेक्स लिंक्ड. अभी डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे पहचानेंगे? ये देख के क्या इस पेडिग्री में जो डिसऑर्डर है, जो इफेक्ट है, क्या उसने जनरेशन स्किप किया है? अगर जनरेशन स्किप नहीं कर रहा है दैट मीन्स इट इज डोमिनेंट, और अगर जनरेशन स्किप कर रहा है माने इट इज रिसेसिव. लेट्स सी, P1 में एक पेरेंट इफेक्टिव है ना, कोई भी एक पेरेंट को या दोनों पेरेंट को इफेक्ट होना पड़ेगा. एक पेरेंट इफेक्ट होगा तो भी चलेगा. एक पेरेंट इफेक्ट दिखाया है, क्या बच्चों में इफेक्ट है? हाँ, बच्चों में इफेक्ट है, लेकिन अनअफेक्टेड भी तो है. माने अफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अनअफेक्टेड चाइल्ड, राइट. और फिर यहाँ पे देखो, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन. ये फीचर है रिसेसिव डिसऑर्डर का. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? पहले तो ऑटोजोमल होगा. बताओ क्या कहा था मैंने, क्यों ऑटोजोमल होगा? इक्वली मेल एंड फीमेल आर अफेक्टेड. ओके, और मेनली यू कंसिडर दिस फॉर F1, ज़्यादा F1 जनरेशन पे ध्यान दो. और क्या कहा? रिसेसिव होगा बिकॉज इट इज स्कीपिंग द जनरेशन, स्कीप जनरेशन है. affected parents having unaffected children, unaffected parents having affected children. याद रखना ये रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है. और डोमिनेंट में क्या होगा? affected parent, affected children, right? unaffected parent, unaffected children. So यहाँ पे 127 में हमारा डिजीज है ऑटोजोमल रिसेसिव, और हमें पूछा है कि कौन सा एप्लीकेबल नहीं है. ऑब्वियसली जो ऑटोजोमल डोमिनेंट है उसके लिए ये चार्ट एप्लीकेबल नहीं है. हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ. Given below are two statements. Assertion: the wavelengths at which there is maximum absorption by chlorophyll A also show a higher rate of photosynthesis. जिस वेवलेंथ में क्लोरोफिल ए मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करता है, एग्जैक्टली उसी वेवलेंथ में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा पाया जाता है ना. ये assertion ये तो करेक्ट है. क्लोरोफिल ए इज द चीप पिगमेंट एसोसिएटेड विथ फोटोसिंथेसिस, और ये भी करेक्ट है, और यही इसका रीजन है. क्लोरोफिल ए ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है ब्लू लाइट एंड रेड लाइट रीजन में, और ब्लू लाइट रेड लाइट रीजन में ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है.
it get two peaks in the action spectrum. जबकि बाकी जो पिगमेंट्स है वो दूसरे रीजन में भी लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बट दे आर नॉट डायरेक्टली impacting, they are not able to give a direct impact to the rate of photosynthesis, माने they are not the chief pigments, right? So who is the chief pigment? Chlorophyll A. तो हम जाएंगे assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. The outermost and innermost wall layers of microsporangium in an anther. Outermost is epidermis. एपिडर्मिस के बाद आता है एंडोथेसियम, उसके बाद है मिडिल लेयर्स, देन टेपेटम. सो आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस, इनर मोस्ट इज टेपेटम. एपिडर्मिस एंड टेपेटम, ऑप्शन डी. 130. रिफर टू द गिवन डायग्राम ऑफ सेल साइकिल. ओके, G1 S G2, यहाँ तक क्या है? यहाँ तक है इंटरफेस और फिर होता है एम फेस. There are 40 pg picogram of DNA in cell during G2 phase. G2 phase have 40 picogram. G2 phase कब आता है? आफ्टर DNA replication, माने ऑलरेडी DNA replicate हो चुका है. हमें पूछा जा रहा है what is the DNA content in the cell at G1 and in the cells formed at the end of M. M में कितना होगा और G1 में क्या होगा? G1 है बिफोर रेप्लिकेशन तो ये होगा 20 pg और M है आफ्टर सेल डिविजन तो वापस से ये G2 का आधा हो जाएगा, दैट इज 20 pg. हमारा आंसर होना चाहिए 20 एंड 20, 20 pg एंड 20 pg. ओके, अच्छा ये ध्यान से देखो कि G1 में अगर हमने कहा इस तरीके से एक क्रोमोसोम है, ठीक है, S में DNA रेप्लिकेशन होगा तो ये क्रोमोसोम पहले G1 में एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड था और S में ये रेप्लिकेट होने के बाद क्या हो जाएगा? 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स. तो DNA कंटेंट क्या हो गया? डबल हो गया, राइट? DNA कंटेंट डबल हो गया. अगर यहाँ पे 2C है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4C. फिर G2 में भी है ना, एट द एंड ऑफ S, और फिर G2 में भी सेम ही होगा और M फेस में जाके फिर ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे. तो हर एक सेल में कितना जाएगा? 2C 2C. देखो तो फिर यहाँ पे अगर 40 pg हुआ तो उसका आधा क्या होगा? 20 pg और यहाँ पे भी इसका आधा क्या होगा? 20 pg. इसलिए हमारा आंसर है 20 एंड 20. आई होप इट्स क्लियर नाउ. What will be the percentage of son having a normal vision if both the parents are of normal vision but both the paternal and maternal grandfathers were colorblind? Okay, so if I see paternal side, paternal grandfather colorblind, तो grandfather XCY. ग्रैंडमदर का इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग नॉर्मल विजन ही लेंगे. जहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं होगा हम लोग नॉर्मल विजन लेंगे, ठीक है. अभी इनके बेटे, राइट, इनके बेटे, क्योंकि हमें कौन सा निकालना है? पेरेंट्स निकालना है ना. तो इनका जो सन है वो क्या होगा? देखो क्या होगा? XY, और तो कोई ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे होगा XY. तो XY जो है दिस इज द जीनोटाइप ऑफ द मैन. अभी मैटरनल साइड में देखते हैं, फिर से वही है ना, फिर से मैं करके दिखाता हूँ. अल्टीमेटली करना नहीं था. ग्रैंडमदर का नहीं दिया है, नॉर्मल लिया, और मैटरनल ग्रैंडफादर का हमने लिया कलर ब्लाइंडनेस. और यहाँ पे अभी ओमेन का हमें जो है लिखना है, क्या होगा? XXC माने कैरियर होगी, राइट, और कोई ऑप्शन नहीं है. अभी इनके कितने बच्चे होंगे, कितने लड़के होंगे, कितने सन होंगे जो नॉर्मल विजन के होंगे? पहले इनमें मेल चाइल्ड निकालते हैं. देखो XXXC ये है फीमेल के लिए. मेल में क्या होगा? XY दिखाई दे रहा है ना, XY है ना, और क्या पॉसिबिलिटी है? XCY. यही दो पॉसिबिलिटी है. सो देयर आर 2 मेल्स एंड आउट ऑफ विच 1 इज कलर ब्लाइंड एंड 1 इज ऑफ नॉर्मल विजन. तो हमें क्या पूछा था? What will be the percentage of sons having a normal vision? That will be 50%. Option C. Given below are 2 statements. Assertion: first step of TCA cycle, that is Krebs cycle, is the condensation of pyruvate with oxaloacetic acid and water. Okay? बिल्कुल नहीं. पहला स्टेप TCA साइकिल का कंडेंसेशन ही है, लेकिन रिएक्शन क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम A 2 कार्बन प्लस
oxaloacetic acid that is 4 carbon give rise to citric acid 6 carbon, okay, in presence of water. ये करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ये रॉन्ग है. द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ TCA साइकिल जो कि कंडेंसेशन है, कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम साइट्रेट सिंथेस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट. तो यहाँ पे assertion is wrong and reason is correct. Assertion is incorrect but reason is correct. Option C. Which growth hormone accelerates the malting process in brewing industry? Okay, तो यहाँ पे होगा ये gibberellin. Gibberellin increases the production of alpha amylase enzyme, okay, that helps in the faster conversion of starch to maltose. और यही जो है हमें चाहिए इन द malting process. ओके, तो malting प्रोसेस में बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे बनते हैं यहाँ पे बियर, विस्की, विनेगर, हॉर्लिक्स, है ना, ये सारी चीज़ें. तो वहाँ पे कौन सा हार्मोन यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में? दैट इज जिबरेलिन. 134. In a disease with Mendelian pattern, okay, of inheritance, all the girls in a family and their father is affected, whereas mother and all the boys are unaffected. So what kind of inheritance it is? It cannot be autosomal, right? It will be father to daughter, mother to son. What kind of inheritance is this? It is X-linked. X-linked inheritance. और इसीलिए X-linked inheritance को कहा जाता है क्रिस क्रॉस inheritance. Father से daughter, mother to son. That means every time the trait or the inheritance or the gene will be passed to the progeny of the opposite gender. Okay, that is called criss cross. Now हम लोग कैसे निकालेंगे कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है? फिर से पढ़ते हैं, देखो. All the girls in a family and their father is affected. अगर हम लोग रिसेसिव का एक एग्जाम्पल ले, सोचो कि XCY, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस का लेते हैं. मदर यहाँ पे लिखा है नॉट अफेक्टेड, अनअफेक्टेड है XX, और यहाँ पे फिर उनके डॉटर में क्या पॉसिबिलिटी है? XXC. अभी बताओ, अगर ये रिसेसिव डिसऑर्डर का इनहेरिटेंस है, राइट, तो क्या डॉटर अफेक्टेड है? नहीं ना, डॉटर क्या हो जाएगी? डॉटर कैरियर हो जाएगी, अफेक्टेड नहीं होगी. लेकिन अगर ये सोचो P में लिख दिया, ठीक है, P सोचो कि क्या है? एक डोमिनेंट म्यूटेशन है, डोमिनेंट डिसऑर्डर है, और फादर है ऐसा, तो फादर अफेक्टेड है क्योंकि फादर में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है. तो चाहे वो रिसेसिव हो चाहे डोमिनेंट हो, फादर विल बी अफेक्टेड. When it will be passed to a daughter, then daughter has 2 X chromosomes, but only 1 X chromosome is mutated, और फिर भी अफेक्टेड है. तो कौन सा इनहेरिटेंस है जहाँ पे अगर एक एलील भी म्यूटेटेड है, एक एलील भी अगर एक्सप्रेस कर रहा है, तब भी क्या होगा? डोमिनेंट ही होगा. मतलब क्या कि डोमिनेंट जीन कैन ऑलवेज एक्सप्रेस बोथ इन homozygous and heterozygous condition. It is an heterozygous condition, then also the daughter is affected, है ना. मतलब ये है X-linked dominant. हम जाएंगे ऑप्शन A के साथ. 135. Which of the following is incorrect about post transcriptional modification? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन किस में होता है? पहले तो क्या वो प्रोकैरियोट में होता है? बिल्कुल नहीं, ये होता है यूकैरियोट्स में, क्योंकि यूकैरियोट्स में है स्प्लिट जीन्स, और स्प्लिट जीन के वजह से हमारा डीएनए डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनाता था, हमारा डीएनए बनाता है हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, और इस हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए को आरएनए प्रोसेसिंग के थ्रू क्या बनाया जाता है? फंक्शनल एमआरएनए. तो ये जो आरएनए प्रोसेसिंग हम लोग बोल रहे हैं, दैट इज द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. अब इस आरएनए प्रोसेसिंग में आएगा स्प्लाइसिंग, जहाँ पे इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा और सिर्फ एक्सप्रेसिव पार्ट दैट आर एक्सॉन्स, ओके, उनको रखा जाएगा, ठीक है ना. तो स्प्लाइसिंग होगा, कैपिंग होगा, टेलिंग होगा. कैपिंग और टेलिंग is required to prevent the ends of the mRNA from the attack of the exonuclease enzyme. कैपिंग होता है 5 प्राइम में और टेलिंग होता है 3 प्राइम में. चलो अभी ऑप्शंस पढ़ते हैं.
स्प्लाइसिंग रिमूव्स इंट्रॉन्स फ्रॉम hNRNA, यस, जिससे कि फंक्शनल mRNA बने. पॉली ए टेल, एक पॉली एडिनाइलेट टेल ऐड किया जाता है, नो, ऐड किया जाता है एट द 3 प्राइम एंड, तो ये रॉन्ग है. ए 5 प्राइम कैप ऐड किया जाता है टू प्रोटेक्ट द एंड फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियस, बिल्कुल करेक्ट. 5 प्राइम कैप है क्या, देखो 5 प्राइम एंड में एक कैप लगाया जाता है जिसको कहते हैं 7 मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो ये भी करेक्ट है. और दिस मॉडिफिकेशंस ऑकर इनसाइड द न्यूक्लियस, यस, न्यूक्लियस के अंदर ही आरएनए प्रोसेसिंग होता है. उसके बाद जब एमआरएनए बन जाए तब उसको एक्सपोर्ट किया जाता है टू द साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन. तो यहाँ पे हमें ढूंढना था इनकरेक्ट, हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ. Okay, so this is the end of our video solution. I hope all of you have done much well. Best of luck for your next exam. Thank you.